And now we'll be having a panel discussion on red chili, for which I would like to call our moderator, Mr. Basavaraj Hampali, founder Spice Extra, once again on the stage. Kindly welcome him on the stage with a big hand, Mr. Basavaraj Hampali, once again, everyone. He'll be the moderator for the panel discussion. And we have the panelists, Mr. Dinesh Bagrecha, Managing Director, Lalit Mohan Spices Private Limited. I request you to welcome him back on stage with a big hand. I would also request Mr. Ajay Kedia, Director and Research Head, Kedia Capital Services Private Limited, to kindly join us on stage once again. Please welcome sir with a big hand. And last but not the least, Mr. Saurabh Tater, Procurement Manager, Spices ITC Limited. Sir, may we have you back on stage, please. Here we are, ladies and gentlemen, starting yet another panel discussion, this time on red chili. So over to our moderator. So we will be having this session on red chili, where we will be discussing how's the crop and how are the future dynamics. So firstly, I will share about Karnataka. So Karnataka is having good arrivals as of today, and it will be increasing basically due to 5531, which area has been increased by a good scale. Maybe by February first week, we will be getting 5531. We will be getting good number of arrivals in between February 2nd week to March 3rd week. And also WP arrivals will also start. KDL, I think top quality is not available as of now, but good second qualities are available. So this is how we can see. But one issue with the Karnataka market is it's having record breaking carry forward stock. You can consider 35 lakh packs, which is a very huge number. Previous maybe highest might have been 15 to 20, 20 to 25 lakhs. So this is something very record high. So that's why sentiments are very low. And we believe that it might continue till the end of season also. So in Karnataka, due to record breaking carry forward stock, I think sentiments are very slow. Now I will hand over to Dinesh ji, so he can share more about the Guntur area, about 341, DD also specifically, because many masala companies are there, DD many are interested, 334 and Teja. So how do you see crop area compared to last year and before that last year, and how's the quality? Because 341 last year was not that of good quality, same was with the 341. Yeah, please sir. थैंक यू। गुंटूर में जो वैरायटीज़ आ रहे हैं, खासकर 341 जो पिसाई कारखानों वालों के लिए खास पसंद बना हुआ है लास्ट 7-8 सालों से, और तेजा वैरायटी है जो एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा आ रहा है, बांग्लादेश और चाइना। और एक दूसरा वैरायटी आया था डीडी भी पिसाई वालों के लिए लो पंजेंसी की वजह से, कलर वैल्यू ज़्यादा की वजह से लास्ट ईयर तक उसकी बहुत अच्छी डिमांड थी। उसके बाद 2 साल से थोड़ा 5531 सिंजेंटा का भी मार्केट बना है। कई कंपनियों ने अपने उसके फ्लेवर के हिसाब से 5531 सिंजेंटा का ही उपयोग करना शुरू किया। ये 3-4 वैरायटीज़ हैं जो मेन पाउडर कारखाने वाले यूज़ कर रहे हैं। मगर मैं कहना चाहूँगा जो अभी इस साल जो 341 की क्वालिटी है, जो लास्ट ईयर के कंपेयर से बहुत अच्छा क्वालिटी है और कलर वैल्यू भी बहुत अच्छा है। 341 में एक खासियत है कि इसकी कलर सस्टेन करती है, इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है दूसरी, अगर आप उस दूसरे के मुकाबले। तो बड़ी कंपनियां जो अगर MDH के ले लें या जो एवरेस्ट ले लें, जो बड़ी कंपनियां हैं वो 341 ही यूज़ करती हैं। उसकी हीट वैल्यू करीब 40 से 45 हज़ार आ रहा है और कलर वैल्यू भी 120 से लगा के 140 आ रहा है। तो और कलर भी रिमेन करता है 6-7 महीने 8 महीने तक भी कलर सेम एज इट इज़ रहता है। तो दूसरा कोई मिर्ची में नहीं रह रहा। तो जितना भी 341 वैल्यू इस साल क्रॉप हमारे यहाँ कुछ कम है, एरिया वाइज कम हुआ है तेजा के मुकाबले, तेजा बहुत ज़्यादा है। तो 341 का रेट अभी भी 150 रुपये चल रहा है और ये रेट सही है और यही चलता रहेगा समझता हूँ। अगर तेजा में और कमी आ सकती है मगर 341 में नहीं आएगी, क्योंकि डीडी का जो क्वालिटी है वो इस साल कम हुआ है। डीडी में और भी नए नए बीज आए हैं
उसकी वजह से भी कई कंपनियों ने डीडी परचेज को रोक दिया है। तो 341 की बहुत अच्छा भविष्य है और 341 इस साल ऊंचा रहने की उम्मीद है। धन्यवाद सर। सौरभ जी, अभी आप आईटीसी कंपनी से जो एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, थोड़ा एक्सपोर्ट का मार्केट का ब्रीफिंग दे सकते हैं कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, दिस ईयर, और क्या आगे क्या हो सकता है सर? बिल्कुल। तो अभी इस साल के यदि एक्सपोर्ट देखें तो दे आर इम्प्रूविंग कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट यदि हम ट्रेडिशनली जाएँ तो ये साल जो है हम 2021 के एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट टच कर जाएंगे। सो एक्चुअली अगर देखें तो वी आर नॉट ग्रोइंग सिंस वी हैव डिग्रोन इन लास्ट 2 years, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग वी आर ग्रोइंग दिस ईयर। सो मेरा ये मानना है कि इस प्राइस पे एक्सपोर्ट बहुत अच्छा होगा। चाइना विल डेफिनेटली कम बैक, इवन दे हैव परचेज ह्यूज क्वांटिटी दिस ईयर एट द लोअर प्राइसेस बिकॉज प्रीवियस देयर प्राइसेस वर कंपैरेटिवली वेरी हाई। दिस ईयर अगेन दे विल कम बैक and they will purchase more quantity, and even for the US, EU, all the markets, even the emerging market like UAE, they will buy ultimate quantity. So if you see this year, हमारा जो होल्स का एक्सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 7 से 8% ही बढ़ा है, पर यदि इसी में आप पाउडर में जाए या वैल्यू एडेड में जाए, वी आर ग्रोइंग बाय मोर देन 20%। तो इससे ये चीज़ क्लियरली विजिबल है कि पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन पाउडर्स, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी उसमें किसी एक या दो कंट्री पे नहीं है। हमारा होल्स में डिपेंडेंसी मेजरली चाइना और बांग्लादेश पे है। वी नो कि बांग्लादेश में कंडीशन ठीक नहीं है, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट वी नेवर नो, एंड दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन कि रमजान का जो डिमांड आना चाहिए था अभी तक वो अभी तक नहीं आ रहा है। सो वी शुड सी कि चाइना विल बी अ मेजर बायर एंड फोकस शुड बी ऑन VAD, एंड नेक्स्ट ईयर आई बिलीव दैट इट विल क्रॉस 21 by 10 or 15%. So I expect exports to be grow better than 21, which was ever high for last 10 years. Thanks sir. Ajay sir, can you share your numbers on the dry chilies? So what do you think compared with last year, how it will be? धन्यवाद। देखिए, ज़्यादा करके हम लोग जो ट्रेडेड कमोडिटी उस पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बट चिली भी एक ऐसी कमोडिटी है जो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं परिचित है, लेकिन इसमें बातें ज़्यादा नहीं हो रही। सीजन से हम जीरा, धनिया, हल्दी की बात करते हैं। कुछ डेटा मैं मॉर्निंग से हम लोग टीम को मैं बता रखा था। लगभग अगर मैं बात करता हूँ प्राइस की, तो मैं पहले थोड़ा ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं प्राइजेस की बात करूँ तो 2023 में हमने लगभग 25,000 के आसपास का भाव देखा, और आज जो देख रहे हैं तो 50% का फॉल है। और कोई भी कमोडिटी में अगर इस तरीके से फॉल होता है तो जो VCP है, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट, इनकी कमर टूट जाती है, इनका मनोबल टूट जाता है। और ऐसे ही कुछ हाल फार्मर से, ट्रेडर से, फार्मर के पास पहले के मुकाबले अभी अगर हम देखते हैं तो हमारे फार्मर्स काफ़ी सक्षम है कमोडिटी को होल्ड करना, चाहे हम कपास की बात करें या कोई भी कमोडिटी में। तो आज हम देखते हैं कोल्ड स्टोरेज में माल पड़ा हुआ है। डिमांड, हमारा सबसे बड़ा बायर एक तरह से चाइना था, जिससे धीरेज जी ने भी बताया कि चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत अच्छी थी और नया मार्केट खुला था। लेकिन पिछले 2-3 सालों में कोविड के बाद से ही चाइना मार्केट पूरा पैसिमिस्टिक रहा है। 2024 में पूरी कोशिश थी कि चाइना उभरेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट तक अभी चाइना छुट्टी पे, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमने प्राइसेस पे सभी पे पड़ता हुआ। आज जीरा है, चिली में आज भी 2-2.5% की गिरावट है, और चिली में भी आज भी मार्केट में गिरावट है। तो चाइना का पार्टिसिपेशन मुझे लगता है 2025 भी थोड़ा सा निराशाजनक है, जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के जो कंसर्न्स है तो वो ग्लोबल मार्केट में इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। तो वीक एक्सपोर्ट डिमांड कंटिन्यू रहेगा। जो हमने एक्सपोर्ट सितंबर 2024 में देखा था वो था करीबन 26,375 टन के आसपास, जो 4% नेग्लिजिबल है। बट मुझे लगता है रुपये की जो गिरावट है ये एक बड़ा कारण रहेगा जो आगे जाके प्राइजेस को थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव बना के रखेगा। लेकिन जब तक ग्लोबल मार्केट में डिमांड में इंप्रूवमेंट नहीं आती है तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स है। आज आप US, यूरोप, नो डाउट 2025 में रेट कट्स जो आएंगे वो इकोनॉमी में बूस्ट करेंगे। जैसे मैंने पहले प्रेजेंटेशन में भी कहा है कि एक मंदी एक ऐसी होती है वो कहीं ना कहीं जाके बॉटम बनाती है। तो मुझे लगता है एग्री के अंदर US, यूरोप, चाइना, अब तक हमने मंदी सुनी है, देखी है, बट 2025 में ये चेंजेस आता है। कल्टीवेशन की अगर बात करें तो पिछले साल तक का जो एरिया देखे तो हमने पिछले 4-5 सालों के अंदर लगभग एरिया अंडर कल्टीवेशन में काफ़ी बड़ा हमने जंप आते हुए देखा है। अगर जो लास्ट डेटा मेरे पास जो अवेलेबल है यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो करीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीबन 9.9 पिछले साल का डेटा था, वो अभी इस
बार थोड़ा सा नेग्लिजिबल हम बोल रहे हैं कि स्टेबिलिटी है, बट 2014-15 में जहाँ पे हमारा एरिया अंडर कल्टीवेशन करीबन 7.61 लाख हेक्टेयर का था, वो लास्ट ईयर हमारा 9.9 मतलब लगभग 10 लाख हेक्टेयर के करीब था। तो एरिया अंडर कल्टीवेशन भी बड़ा उम्मीद थी कि ये मार्केट शेयर कंटिन्यू रहेगा, बट टाइमिंग पैसिमिज्म सभी मसालों में और सभी एग्री में है, जिसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। अब अगर हम इस बार के क्रॉप की बात करें तो माल काफ़ी अच्छा है, डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है, जिसके चलते अभी भी डिस्ट्रेस सेलिंग बनी हुई है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में मैं देखता हूँ तो हाई स्टॉक एबिलिटी है, तो ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी उम्मीद नहीं है कि हम प्राइजेस में कोई बड़ा जंप देखें। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जाने में नीचे में 11-12 का जो बेस है वहाँ तक मार्केट ऐसा डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं रहेगी, बट वहाँ पे क्योंकि कभी भी कमोडिटी में आप ये देखिए, जब एक फॉल के बाद मार्केट जब ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है कि बायर भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि उनको डर का माहौल रहता है, और सेलर भी ये भाव में बेचने की कोशिश नहीं करता है, तो करीबन 50% का फॉल दिखा है। लेकिन मुझे एक साइन दिखता है कि गवर्नमेंट का रोल और नेफेड के रोल पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इनके जैसे अभी रिसेंट न्यूज़ भी है कि इनकेस अगर गवर्नमेंट या नेफेड अगर इसमें कुछ रोल प्ले करती है तो प्राइजेस को अगले 2-3 महीने में, शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि अगर ये स्टेट एजेंसीज अगर स्टेप इन करती है तो उसकी वजह से जो डाउन साइड रिस्क जो अभी सबको डर लग रहा है वो कहीं ना कहीं रुकता हुआ दिखाई देगा। प्राइजेस वापस 14-15 पे जाकर रुक जाए, बट डेट विल टेक टाइम। तो एज ऑफ नाउ अराइवल प्रेशर के चलते कहीं भी ऐसा स्कोप दिख नहीं रहा है, बट 11-12 का टेक्निकली तो इतना नहीं है, फ्यूचर में तो ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, बट 11-12 के आसपास एक बेस रेट होता हुआ दिखाई देता है। हाँ, अगले 3 महीने के बाद और कल बजट है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो अगर स्टेप इन करती है एग्री कमोडिटी में, कुछ लोगों ने सुनने में आया कि स्टॉक करना चाहिए गवर्नमेंट को इसमें, मसाले में, पल्सेस में अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आता है तो कहीं ना कहीं ये चीनी एक ऐसा लेवल पे पहुंच सकता है जहाँ पे एटलीस्ट गिरावट तो नहीं, मुझे लगता है थोड़ा बेस वहाँ पे मिल सकता है। बढ़िया जी। अभी सभी से एक चीज़ शेयर करने के लिए चाहूँगा। सभी एक चीज़ शेयर कर सकते हैं कि क्या आपको लग रहा है हमारा ड्राई चिली इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि हमारा ड्राई चिली में फार्मर के लिए लेबर इंटेंसिव हो रहा है। यहाँ पे कुछ मशीन नहीं, कुछ कंप्लीट मैनुअल लेबर के ऊपर हो रहा है। अगर कोई सीड कंपनी, फर्टिलाइजर कंपनी कुछ मशीन लाए जो हमारे पिकिंग को, ग्रेडिंग को हेल्प कर सके तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो अभी फार्मर्स को एक ही बार, अभी इस साल हमारे को लग रहा है भंडारी क्रॉप में फरवरी 10 से लेके मार्च 15 तक एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अराइवल्स आएगा, मगर वहाँ पे लेबर्स मिलने का बहुत इशू होगा। अगर लेबर नहीं मिला और टाइम टू टाइम पिकिंग नहीं हुआ तो हीट स्ट्रोक की वजह से क्वालिटी डिग्रेड होगा। तो हमारे को थोड़ा मशीन के तरफ भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी लेबर्स नहीं मिल रहे। स्पेशली कर्नाटक में क्या है, एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, तो लेबर्स मिलना बहुत इशू हो रहा है। तो दिनेश जी, आपको क्या लगता है एक आपके हिसाब से कोई एक प्रॉब्लम और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है हमारा ड्राई चिली इंडस्ट्री आगे बढ़ने के लिए? लेबर प्रॉब्लम तो कर्नाटक नहीं, इवन आंध्रा में भी बहुत प्रॉब्लम है, मगर ये मिर्च में ऐसा नहीं लगता कि इसको क्या है कि एक साथ नहीं टूटता है। मिर्च को 4 बार वो निकालता है। जनवरी फरवरी में फर्स्ट क्रॉप निकालता है, मार्च में सेकंड क्रॉप निकालता है, अप्रैल में थर्ड क्रॉप निकालता है, और मई आते आते वो फोर्थ क्रॉप भी निकालता है। हर 4 बार पिकअप करना पड़ता है, पिक करके उसको 15 से 20 दिन उसको सुखाना पड़ता है, और वहाँ की गर्मी के हिसाब से वो मिट्टी वहाँ पर सुखाता है और वहाँ तैयार करके वो लेके आता है। तो अगर मशीन से होगा तो वो मेन, अगर मशीन से भी पिकअप करेंगे तो प्लांट को डिस्ट्रॉय होने का डर ज़्यादा रहता है। एक बार मिर्ची नहीं आती, दूसरी क्रॉप में आप क्या होता है कि एक बार हार्वेस्ट हो गया, एक बार निकालते हैं चल जाएगा। यहाँ पर उसको एक बार मिर्ची तोड़ेगा और राइप होने के बाद फिर उसको पानी देगा, वापस फूल लगेगा, वापस उसी प्लांट से 4 बार मिर्च लगाएगा, तो वो बहुत मुश्किल है। हो सकता है भविष्य में ऐसी कोई मशीन आए। पहले ऐसे भी लगता था कि हमारे यहाँ डंडी तोड़ने की बहुत कोशिश की गई कि डंडी तोड़ने की मशीन लग जाए, नहीं लगी, लेकिन आखिर में वो चाइना से और कहीं से भी टेक्नोलॉजी आई और आज हमारे यहाँ स्टेम कट हो रहा है। पूरी तरह तो डंडी कट नहीं होती है, लेकिन स्टेम कट होता है। मशीन आएगी लेकिन टाइम लगेगा। मगर एक साथ चाइना में क्या होता है, एक बार ही हार्वेस्ट कर लेते हैं, एक बार ही निकाल देते हैं और उसको सुखा देते हैं। यहाँ पर 4 बार 5 बार निकालता है, और जब किसान को पैसा ज़्यादा मिलना शुरू होता है, रेट ज़्यादा होता है, तो वो और ज़्यादा मेहनत करता है, उसको पानी भी देता है, फर्टिलाइज़र भी देता है, और एक आध क्रॉप वो एक्स्ट्रा निकाल देता है। इसलिए हमारे यहाँ क्या है, मिर्च में आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि
भाई इतना क्रॉप आएगा, इतनी एरिया है और इतने यील्ड है। अगर उसका रेट ज़्यादा है तो यील्ड ज़्यादा बैठ जाएगी, और रेट अगर कम है तो एक यील्ड वो छोड़ देगा, क्यों उसको लेबर प्रॉब्लम है। और वो देखेगा भाई एक दो कुंटल के लिए मैं इतनी लेबर लगाऊँ, इतनी मेहनत करूँ और भाव नहीं है तो उसको खेत पे छोड़ देगा। तो इसके लिए डिपेंड करता है आपका रेट। अगर रेट अच्छा है तो वो लेबर कहीं से भी लेके आएगा। अभी जो भाव चल रहे हैं 130 रुपये का भाव चल रहा है, अगर यही भाव चलते रहेंगे तो हो सकता है आने वाला नेक्स्ट ईयर जो क्रॉप डालेगा किसान, क्यों लेबर का प्रॉब्लम तो ही है, और जब उसको पैसा पूरा नहीं मिलेगा तो वो शिफ्ट करेगा। दूसरा, वो अभी फिलहाल तो कोई दिख नहीं रहा है, हो सकता है भविष्य में कोई मशीन आ जाए। धन्यवाद सर। सौरभ सर, so what do you think is one big problem and one which and a solution to that problem in dye chili industry? चिली में मेजरली जो हम लोग भी समझ में आ रहा है, दैट इज मेजर इशू इज लेबर। सो व्हाट वी आर प्लानिंग इज जहाँ जहाँ ऑटोमेशन कर सकते हैं, वेयर वी कैन रिड्यूस द लेबर, एटलीस्ट वहाँ तो ऑटोमेट करें। हार्वेस्टिंग इज द मेजर इशू, बट जहाँ पे आज की तारीख में पेस्टिसाइड यदि आदमी स्प्रे करता है उसके लिए भी उसको लेबर लगती है। नाउ द सॉल्यूशन हैज कम, यू कैन यूज द ड्रोन्स की हेल्प से आप ऑटोमेटिकली लेबर को हटा सकते हैं बहुत सस्ते में। आजकल ITC इज डूइंग इन देयर प्रोग्राम एरियाज, so we have tied up with the companies, so they are spraying in our farmer areas, we are giving some subsidy, companies are giving some subsidies, so based on that जब वो स्प्रे करते हैं तो पहला फ़ायदा क्या होता है कि पहले जब फार्मर खुद स्प्रे करता है किसी लेबर की हेल्प से, तो उस केस में उसको पता नहीं रहता है कि वो कितना स्प्रे करना है। यदि उसको 10 ml स्प्रे करना है वो 10 की जगह 12 ml स्प्रे कर देता है। बट व्हेन वी यूज और व्हेन वी स्प्रे थ्रू ड्रोन्स तो हमारा कंट्रोल इसमें बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फार्मर को नहीं आता है कि ड्रोन कैसे चलाते हैं। उसके लिए जो ऑपरेटर होता है वो टेक्निकली स्किल्ड ऑपरेटर ही उसको चला सकता है। सो हम उसको जब बोलते हैं कि आप इतना ही यूज़ करिए दैट इज सफिशिएंट फॉर द क्रॉप, तो एट द एंड ऑफ द डे उसका खर्चा कहीं ना कहीं बचता है पेस्टिसाइड के ओवर एक्सेस यूज में। सेकंड, जो लेबर उसको 500, 400 या 500 या 600 रुपये तक जाता है, उसका खर्चा भी उसका कम पड़ता है, लगभग 150 से 200 रुपये में उसका काम हो जाता है। सो स्टेप बाय स्टेप वी कैन मूव अहेड। एटलीस्ट इनिशियली जहाँ पे ऑटोमाइजेशन हो सकता है वहाँ से हमको शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट, इन फ्यूचर इफ देयर इज समथिंग, सम वैरायटी व्हिच कैन कम, व्हिच कैन गिव द सेम yield in one picking, then it might help. Let's say 5531 we are going in multiple pickings. कल कुछ ऐसा इनोवेशन हो जाए कि एक ही पिकिंग हो और yield is coming like 3 tons, so that we can follow the same model which was happening in China. So that is the future, I believe, from where we have Syngenta company, sorry. So obviously he wants to say something. So you can add to that. I just he's Saurabh. He's from Syngenta company, so one of the leading seed supplier for India. Thank you. So first of all, thank you to hearing your conversation, which is really interesting. So just want to add on few things what you talk about the labor intensity and as well as the machineries. So just now Saurabh talked about the single harvest, right? So a company like us, we do have that single harvest technology with us, but we are still not launched in India due to some certain reason, because as of now the adaptability of the growers is not that high way, and you don't have that machineries. The machinery costings are quite high, but for sure in the next 2 to 3 year or 5 year horizon, you are going to get that single harvest crop which can give you the yield at 50 quintal. Okay, so what it will have, you will reduce your risk, what you are going to get from the weather, and also you are going to reduce your risk in terms of your costing. So that's the one point. Next is that about the machinery which can help to the farmer community as currently, about the drying machine. That you are 15 days, what you are putting in the sun, under the sun bath to the crop, so which is a very, very huge risk. You don't have a organized drying gear in all the locations. You might have some of the few locations, but not all the locations. They will be depending on the soil only. So those cases, this drying machines which has been already been developed, and China is already using it. So those things we are also going to bring it. So now I have one question to Kediaji. So the question is, if you look back, Yeah, we take questions later. Just we'll close the session. no, this is linked to that only. So that is why I'm asking. Just one minute. Kediaji, what do you think one big problem and a solution you can add on to this thing or whatever? I think you are some, like an outsider perspective, so you can add thing.
देखिए फ्रैंकली मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी खूब है, प्रॉब्लम तो है हमारे साथ, लेकिन जब बोलते हैं ना माइनस के अंदर ही प्लस बन सकता है। तो जस्ट मैं मेरी टीम से ही बात कर रहा था कि भाई थोड़ा बहुत और इनपुट दो चिली के लिए। तो आई थिंक चिली स्पाइस बोर्ड तो है हमारे पास, चिली बोर्ड। तो मैंने ये चीज़ पहले भी हमने रखी थी कि अनलेस एंड प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं होगा, आप मान के चलिए आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते। आज बहुत बार होता है, मैं सब जितने भी एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, बोले यार मार्केट में कंपटीशन बहुत है। देखिए कंपटीशन कब होगा, जब आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे। अगर एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले नज़र आती है, मैं आज ऋषु जी जब पैकेजिंग के बारे में बता रहे थे, तो मार्केट में जाते हैं हम क्या बोलते हैं, अरे ये पानी की बॉटल कितने में देता है, तो प्राइस पे आ जाते हैं। और जब प्राइस पे हम कंपेरिजन आते हैं तो हम पैसा नहीं बना सकते। तो मेरे को 2-3 चीज़ लगता है। पहला है वी शुड आस्क फॉर चिली बोर्ड, क्योंकि जब एक संगठन बनेगा तो हम उसमें प्रोडक्ट इनोवेशन करते हैं। तो कुछ चीज़ें मेरे को जो लगती है, जो मैंने काफ़ी सेशन में रखता भी हूँ मैं, पहला है वैल्यू एडिशन। यहाँ पे वी इंडियंस सॉरी टू से बट हम मात खाते हैं। आज कल अश्विन भाई ने भी कहा कि यहाँ से हम चिली भेजते हैं यूएस में या चाइना में, और वो उसी प्रोडक्ट को रीडिफाइन करके नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं। और जो चीज़, या एग्जाम्पल हम मक्के की ले लेते हैं, आज हम लोग, हमारा किसान 5 रुपये में मक्का बेचता है, और हम लोग इतने स्मार्ट लोग हैं कि पिक्चर देखते देखते वही मक्के के पॉपकॉर्न 500 रुपये में लेके खाने में भी हमको झिझक नहीं होती है। तो जो बोलता है इंडियन आदमी पैसा नहीं देता, 200 टका देता है, लेकिन वो इनोवेशन का पैसा देता है। तो आज चिली में हमारे पास क्या इनोवेशन है? कोई नहीं है। आज पिज़्ज़ा आता है, उसके ऊपर हम लोग चिली फ्लेक्स डालते हैं, बट उसके बाद क्या? तो अगर ये चिली बोर्ड अगर बनता है और थिंक टैंक्स आकर उस पर सोचते हैं तो बहुत चीज़ें बन सकती है। आज हल्दी का दूध तो हम घर पे पीते हैं, बट अब अमूल की नीति खुली है कि हम हल्दी के दूध का पैकेट बनाकर लेके जा सकते हैं। तो चिली में ऐसा कुछ हो सकता है कि चिली, अभी धनिया की बात करता हूँ, एक जन से मैं ऑलरेडी मेंटरिंग कर रहे हैं हम लोग, धनिया का शैम्पू, धनिया के फेस वॉश, तो चिली का कुछ हो सकता है? नहीं, चिली तो आंख में डाली जाती है। अरे नहीं, अगर उसके ऊपर काम किया जाए तो प्रोडक्ट इनोवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आज हम नहीं कर रहे हैं। तो चिली बेस्ड प्रोडक्ट, जहाँ पे आज तक हमने चिली पाउडर, डिहाइड्रेट फ्लेक्स यही किए हैं, बट आई थिंक काफ़ी चीज़ें हैं। चिली वेट लॉस में भी बहुत काम आती है, तो बट वो चीज़ बताने की ज़रूरत है। जैसे आज एक प्लेटफॉर्म पे बात हो रही थी कि यहाँ से हमें एक जामन की ज़रूरत है, क्योंकि हनुमान तो हम हैं, हमको मालूम है हमारे पास चिली है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, नानी माँ के सबके नुस्खे भी हैं, बट वो आज नए पैकेज में लाकर बताने की ज़रूरत है। वो हम लोग, मुझे लगता है पर्सनली एज ए आउटसाइडर, वो मिसिंग लगती है। इसके अलावा है एक्सपोर्ट मार्केट। हम बातें करते हैं एक्सपोर्ट की, लेकिन जो एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोग पूरी नहीं करते हैं। क्योंकि आज आई डोंट नो मैं कितना सही हूँ इस चीज़ पे, लेकिन मैं जब भी कोई फॉरेन डेलीगेट से बात करता हूँ तो बोला इंडिया के सामान से थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि दिखाते कुछ है, आता कुछ है। फ्रेंकली देखो, हम लोग ये VCP हम ही देने वाले हैं, बट वहाँ पे और थोड़ा सा हमको इंटरनल चेकअप में रखना चाहिए। तो आई थिंक ये 2 फैक्टर है। एक तो वैल्यू एडिशन अगर हम करते हैं प्रोडक्ट में, तो बहुत ही अच्छा स्कोप है चिली के लिए। बढ़िया सर, धन्यवाद सर। किसी का हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। किसी का कुछ इनपुट्स डालने का है क्या सर? आपको कुछ और इनपुट्स? या Since we are in Chile in a big way, so I'm just giving our estimation what we are thinking about Chile this year. So जैसा आप सबको पता है कि लास्ट ईयर की कंपैरिजन में एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल एट एरिया लेवल, सो ओवरऑल एरिया इज ऑलमोस्ट ड्रॉप बाय 20%, बट द यील्ड इंक्रीज इज ऑलमोस्ट बाय 15%. So we are looking at almost 10% higher crop compared to last year, but because of the cold storage stocks, it will be bumper. So what we are looking at, the cold storage capacity which is available as of now, we fall short in the coming months. So there will be more pressure which will be coming to Chile in coming months, that we have to see. If the domestic demand remains same and there is no export support from China, then it will be a huge pressure in March or April we will see. So there is absolutely no hope, or I don't see any support which can take the market up. Production is very good. All varieties, all grades will be available sufficient in the coming year. Thank you. Great, great. Thanks for sharing, sir. So shall we go for questions, sir? Any? Yeah. So any questions?
data. So if we look, just before session you talked about the analytics and the indications, but look at the Chile's overall data integrity and the data source. They are not organized. Right? There is nothing including your area, either area or your consumption pattern, the cold storage availability. So some of the companies, they are doing it their own. So how do you think on that way, that how to predict for the next 3 months or the next 1 year, how the market sentiments or the dynamics is going to have? So how you are going to give that value to today's data, and what are the process you would like to tell to the industry or the somewhere that having the integrity of the data? Yeah, you can answer it in short. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे एक बोर्ड बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज फ्रेंकली आज हम लोग गवर्नमेंट एजेंसी के पास भी जब डेटा के पास जाते हैं तो ऐसा लगता है उनसे हम किडनी मांग रहे हैं। और फ्रेंकली जो आज बासु जी काम कर रहे हैं, आईटीसी काम कर रही है, तो इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट जरूर हो रहा है, बट वी नीड एक प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड बने और सब अपने इनपुट देंगे तो ही ये ट्रेड सुधरेगा। अदरवाइज आज जब मैं जाता हूँ, मैं मेरी नज़र से देख के मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में ऐसा होगा, इनकी नज़र अलग है, इनकी तो एक अथॉरिटी चाहिए हमें, और वो फ्रेंकली इंडिया में अभी एज ऑफ नाउ मिसिंग है। तो रादर देन क्रिटिसाइजिंग देम, लेट्स कम टुगेदर एंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे एक्चुअल डेटा रहता है तो वर्क करेंगे। बट फ्रेंकली आज के डेट में नहीं है। मैं खुद फार्म पे जाता हूँ और चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, खुद प्राइमरी डेटा लेने की कोशिश करता हूँ, बट आईटीसी लाइक कंपनी डेफिनेटली और आप जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं ये ज़्यादा इस पर इनपुट दे पाएंगे। बट फ्रेंकली इंडिया में एग्री डेटा लेना बहुत डिफिकल्ट है, और जो डेटा है उसमें भी अथॉन्टिसिटी लेना बहुत डिफरेंट है। इसी के लिए हम लोग ये वेरिएशंस देख रहे हैं। अभी आपने बताया कि चिली बोर्ड बनना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि लास्ट 4-5 साल से इवन गवर्नमेंट के नज़रों में भी मिर्च का बहुत ऊंचा भाव है। गवर्नमेंट भी देख रही है बहुत ऊंचा भाव है, यील्ड भी बहुत ज़्यादा है और क्रॉप भी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये तभी बनेगा जब इस साल जो क्रश हो रहा है, जो रेट कम आए, अगर फार्मर की साइड से कुछ एजुटेशन होगा तब इसके ऊपर ज़रूर बनेगा। क्यों अभी तक तो गवर्नमेंट 1 एकड़ में मिर्च, आप कोई भी कमोडिटी आप देख लीजिए, 35 कुंटल मिर्च निकल रही हो और उसका भाव 20,000 रुपये का रेट हो, तो सरकार देख रही है कि किसान एकड़ का 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया कमा रहा है, तो उसके ऊपर वो ध्यान नहीं जा रहा है। अब रेट बहुत कम हुआ है और एक्सपोर्ट अगर कम होता है तो इसके ऊपर सरकार अवश्य ध्यान देगी। और ये जो पेस्टिसाइड का इशू भी आया है, हमने कई बार इसका रिप्रेजेंटेशन दिया सरकार को कि इसके ऊपर आप बोर्ड बनाइए। अभी जो टर्मरिक का बोर्ड भी बना था, इसी गवर्नमेंट के निज़ामाबाद के ऊपर पे रखा है उन्होंने, तो टर्मरिक बोर्ड पे, तो इसके ऊपर बहुत रिप्रेजेंटेशन होता है। उनका वही है कि आपको इतना वैल्यू, इतना रेट आ रहा है किसान के ऊपर, अब इसके ऊपर हम नहीं करना चाह रहे हैं कि ताकि मिर्ची का भाव देखिए हर जगह मिर्ची बुआई शुरू हो जाए तो इसका बहुत क्राइसिस हो सकता है। नहीं, बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा था। टर्मरिक में भी यही चीज़ हुई थी कि मार्केट बिल्कुल ही एकदम बेटर बॉटम पे आ चुका था, इसलिए टर्मरिक बोर्ड बना। ऐसे कॉटन पे बताता हूँ कि हम CAI को तो जानते हैं, बट टैक्सप्रोसी तो गवर्नमेंट ने अभी एक बोर्ड बनाया है जो कॉटन को वर्ल्ड मार्केट में लेके जा रहा है, उसको बोलते हैं कस्तूरी कॉटन। तो उन्होंने एक नॉर्म्स बना दिया है, तो वैसे ही हम चिली के लिए भी अगर बोर्ड बनता है तो बेनिफिट उसमें होता है। Great, sir. So I think we'll close it now. So thanks for having us, sir. Thanks NNS team, and thanks all other people over here. Thanks. Thank you, sir, for that wonderful panel discussion. May we request all of you to give a big hand to all our panelists and our moderator.